بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں گے۔ کراچی کا ضلع شرقی میں ڈاکوؤں نے 2 افراد کی جان لے لی۔ نیو کراچی میں عامر اور نارتھ ناظم آباد میں سید حامد علی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جان گنوا بیٹھے۔ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کے مختلف واقعات میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل اسٹریٹ کرمنلز کے نشانے پر ہے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ نیو کراچی پاور ہاؤس چورنگی پر ملزمان نے شہری سے لوٹ مار کی، مزاحمت پر ٹانگ پر گولی مار دی۔ مشتعل ہجوم سے بچنے کے لیے ملزمان نے فائرنگ کی جس سے عامر نامی شہری جاں بحق ہو گیا۔ نارتھ ناظم آباد انڈا موڑ پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے ضعیف شخص کو قتل کر دیا۔ جاوید قائم خانی کی رپورٹ۔ کے مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ نیو کراچی پاور ہاؤس چورنگی پر ملزمان نے شہری سے لوٹ مار کیا اور مزاحمت پر ٹانگ پر گولی مار کر زخمی کیا۔ مشتعل ہجوم سے بچنے کے لیے ملزمان نے فائرنگ کی جس سے عامر نامی شہری جاں بحق ہو گیا۔ یہ میرا بھائی کام پہ جا رہا تھا، پاور ہاؤس پہ اس کو ڈکیٹ اس کو شوٹ کر دیا۔ مجھے جتنا معلوم تھا میں بتا۔ نارتھ ناظم آباد انڈا موڑ پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے ضعیف شخص کو قتل کر دیا۔ 70 سالہ سید حامد علی کو ملزمان نے ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا۔ نارتھ ناظم آباد سقی حسن کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر نور الاسلام نامی شہری زخمی ہوا۔ عوامی حلقوں میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے دوران فائرنگ کے واقعات پر خوف پایا جاتا ہے۔ کیمرامین جامشیر بلوچ کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس پر ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے عامر کا واقعہ، اہل علاقہ کا تھانہ بلال کالونی کے باہر احتجاج۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عامر کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا تھا جبکہ پولیس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹارگیٹڈ قتل ہے، عامر کو ٹارگیٹ کر کے قتل کیا گیا ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کا اور موقع پر موجود جو عینی شاہدین تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہے۔ عامر کے قتل کا واقعہ، اہل علاقہ کا تھانہ بلال کالونی کے باہر احتجاج۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس پر ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے عامر کا واقعہ، اہل علاقہ کا تھانہ بلال کالونی کے باہر احتجاج۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ کی جانب سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے تھانہ بلال کالونی کے باہر۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس پر ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے عامر کا یہ واقعہ، اہل علاقہ کا تھانہ بلال کالونی کے باہر احتجاج۔ اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پولیس نے اس کو ٹارگیٹڈ قرار دیا ہے، یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ واقعہ ہے، لیکن اہل علاقہ کی جانب سے اور عینی شاہدین کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹارگیٹڈ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ ہے اور پولیس اس کو ٹارگیٹ کلنگ کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جاوید قائم خانی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، بتائیے گا۔ بالکل جی، علاقہ مکی سراپا احتجاج ہے۔ پاور ہاؤس چورنگی نیو کراچی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں عینی شاہدین اور مقتولین اور ورثاء کے مطابق جو ہے فائرنگ کا واقعہ ایک نوجوان کے ساتھ پیش آیا ڈکیتی مزاحمت پر، جسے ٹانگ پر گولی مار کر جو ہے وہ زخمی کیا اور ڈکیتی کر کے فرار ہوتے ہوئے ملزمان کو شہریوں نے پکڑنے کی کوشش کی، قریب جانے کی کوشش کی، اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر ملزمان نے جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کیے جس پر گزرتے ہوئے پاور ہاؤس چورنگی کے قریب ہی موٹر سائیکل سوار عامر جو ہے وہ اس فائرنگ کی زد میں آیا اور فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا، جسے پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر ڈکیتی نہیں بلکہ ذاتی دشمنی کا جو ہے وہ واقعہ قرار دینے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ پولیس حکام اور وزارت داخلہ کی جانب سے اس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں کہ شہر میں جو ہے وہ میڈیا بڑھا چڑھا کر واقعات کو جو ہے وہ پیش کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں اور انہیں ڈکیتی کا رنگ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل جو ہے وہ علاقہ مکی اسی بات پر سراپا احتجاج ہے، بلال کالونی تھانے کا گھیراؤ کیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کیا، جبکہ اسی واقعے سے جڑتے ہوئے کچھ ہی فاصلے پر جو ہے وہ کچھ ہی منٹوں کے بعد جو ایک اور واقعہ پیش آیا انڈا موڑ پر، جہاں پر بھی ایک معمر شخص جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہوا، جن کی شناخت جو ہے وہ حامد علی کے نام سے کی گئی۔ وہ بھی ڈکیتوں کے ساتھ مزاحمت پر جو ہے وہ گولی لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ اسی
असना में जो है वो कुछ देर के बाद फासले पर जो है वो सखी हसन पर भी वाकया पेश आया, जहाँ पर भी डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से नूर इस्लाम नामी शहरी जो है वो जख्मी हुआ। इसी तरह सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो है वो वाकयात एक ही घंटे के अंदर जो है वो 3 से ज़ायद मुकामत पर इस तरह के वाकयात पेश आए, जिसमें 2 अफराद जहाँ भाग और 3 जख्मी हुए, जिसमें तमाम पर पुलिस की जानिब से जो है कोई अब तक ऐसा जवाब नहीं दिया गया कि वाकयात जो है वो किस बाइस रोनुमा हुए, जबकि वाज़ेह तौर पर डकैती के शवाहिद मिले हैं। लेकिन पुलिस अब तक जो है वो सिर्फ यही राग अलापती दिखाई दे रही है कि फुटेजेज इकट्ठी की जा रही हैं, मुल्जिमान तक पहुंच गए हैं और जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है जावेद, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान की शादमान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहीद होने वाले जमात इस्लामी के रुकन सैयद हामिद अली के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात की, ताज़ियत का इज़हार किया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि रवां बरस 50 से ज़ायद शहरी स्ट्रीट क्राइम और डकैती मुज़ाहमत पर शहीद हो चुके हैं। कातलों और दहशत गर्दों को हुकूमतों और सिस्टम की सरपरस्ती हासिल है। देखिए ना कि यार किस तरह से दिन दहाड़े लोगों को कत्ल किया जा रहा है और डाकुओं को, डकैतों को कोई फिक्र ही नहीं है, खुलेआम गोलियां चला रहे हैं बगैर किसी वजह के, छोटी छोटी बात पर। यानी अभी यहाँ पर एक वाक़या ये हामिद भाई के साथ हुआ, उनको गोली मारी, करीबी आगे चौक है वहाँ पर गोली मारी, शहीद कर दिया। एक और नौजवान को फेडरल बेरिया की तरह वहाँ पर गोली मारी, कंधे पे, सिर्फ इस बुनियाद बाइक छीन चुके हैं, मोबाइल छीनते हुए उसने कहा मोबाइल नहीं है तो गोली मार दी। इसका मतलब ये है कि इन कातिलों को, इन दहशत गर्दों को, हुकूमतों, ये लोग हैं उनकी सरपरस्ती हासिल है, सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन ये सिस्टम तो अब जाकर इस्लामाबाद में बिठा दिया गया है ना। जिन लोगों ने ये काम किया है वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद होंगे, तबाह होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो हमारे बच्चों की लाशें गिराने वालों के सरपरस्त हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से मुसल्लत किया है इन डाकुओं और चोरों को, वो भी बर्बाद होंगे और ये चोर भी बर्बाद होंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर कायद में बढ़ती वारदातें। ईस्ट जोन पुलिस ने सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी। 3 माह के दौरान 5000 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुकाबलों में 25 मुल्ज़िमान हलाक हुए। मेराज अख्तर की रिपोर्ट। शहर कायद में डकैती और लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें जारी हैं। ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च तक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कोरंगी और मलीर पुलिस के मजमूई तौर पर 158 मुकाबले हुए, जिसमें 25 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस मुकाबले के दौरान मजमूई तौर पर 4802 जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 810 पिस्तौल, 12 क्लाशनकोफ, 6 दस्ती बम और 2355 गोलियां बरामद हुई। गुटखा मावा की फरोख्त में मुलविस 495 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया। डीआईजी ईस्ट जोन गुलाम असफर महेसर के मुताबिक जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। मेराज अख्तर, सिटी 21। सिंध काबीना ने सूबे में अगस्त 2023 से सरकारी मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। सिंध काबीना ने कोविड के दौरान भर्ती किए 4000 से ज्यादा मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में जून तक की तौसी कर दी। आजिज जमाली की रिपोर्ट। आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास, वज़रा, मुशीरों और मुतल्लका अफसरान ने शिरकत की। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमतों पर आयद पाबंदियों का जायजा लिया। महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्तियों समेत मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों की मंजूरी दे दी और अगस्त 2023 से सरकारी मुलाजमतों पर आयद पाबंदी हटा दी। सिंध काबीना ने कराची वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए सिंध हुकूमत के हिस्से की रकम 64 करोड़ 67 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सिंध काबीना ने कोविड के दौरान भर्ती किए गए 824 डॉक्टर्स और 324 नर्सेस समेत 4000 से जायद मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में जून तक तौसी कर दी। तनख्वाहों और अखराजात के लिए 2 अरब की भी मंजूरी दी। सिंध काबीना ने सूबे की 50 डिस्पेंसरियों को PPHI के सुपुर्द करने की भी मंजूरी दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अर्ज़ मुक़द्दस में सहूनी जारियत के खिलाफ जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जाएगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने अवाम से अपील की है कि अवाम मुल्क भर में निकाले जाने वाली रैलियों में भरपूर शिरकत करे। ताहा मलिक की रिपोर्ट। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम के खिलाफ 25 रमज़ानुल मुबारक को यौमुल क़ुद्स मनाया जाएगा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन रहनुमा अल्लामा बाकर अब्बास ज़ैदी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जुम्मतुल विदा यौमुल क़ुद्स को सरकारी सतह पर मनाने और आम तातील का ऐलान करे। ये बहुत ज़रूरी है। हमीद इंजीनियर साहब जो हमारे MNA हैं पारा चनार से, उन्होंने ये करारदाद पेश की है, जिसे कबूल भी कर लिया है मजलिस वहदत मुस्लिमीन के, और हमें उम्मीद है हम इसकी हिमायत करते हैं और तकाज़ा करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हुकूमती लेवल पर यौमुल क़ुद्स मनाया जाए, ताकि हम अपने
मोमिन भाइयों के साथ खड़े हों। अल्लामा बाकर अब्बास ज़ैदी ने मजीद कहा कि 81% फलस्तीन मलबे का ढेर बन चुका है। 17 लाख अफराद रफा क्रॉसिंग पर खुले आसमान तले बेघर अपनी ही सरजमीन पर पनाह गुज़ीन हैं। गजा में हंगामी बुनियादों पर खुराक, अद्वियात समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइल अपने इस जंगी जराइम में मुलव्विस है। अभी तक आप देखें कि तकरीबन इमदादी ग्रुप्स के 200 आदमी तो फ़कत इनके शहीद हुए हैं। 22-25 हज़ार के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 13-14 हज़ार बच्चे और ख़वातीन हैं। तकरीबन 80% गज़ा जो है वो मस्मार हो गया है, मकानात तबाह हो गए, रहने के काबिल नहीं है। MWM के रहनुमाओं ने मुसलमानाने मुल्क को गासिब सह्यूनी हुकूमत इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर दिया और पाकिस्तानी अवाम से इसराइली मसनूआत के बाइकआउट की अपील की। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ तहा मलिक, सिटी 21। महकमा सकाफत की जानिब से पाक ईरान हुस्न क़िरत का मुकाबला किया गया, जिसमें ईरान के 5 रुकनी वफ़द ने क़िरत और अस्माउल हुस्ना और मनक़बत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पेश की। पाकिस्तानी कारी हज़रात ने भी क़िरत करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफ़ा पेश किया गया। पाक ईरान हुस्न क़िरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में महकमा सकाफत की जानिब से माह सयाम में क़िरात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ईरान और पाकिस्तान के कारी और सनाख्वानों ने मनकबत, नात और खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत पेश की। खाना फरहंग ईरान के डायरेक्टर ने कहा कि पुरनूर महफिल पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। माह सयाम में गजा और फलस्तीन के मुसलमानों को याद रखें। मज़लूमान गज़े व कूदकान, मादरान, ज़नान व मर्दानी के मज़लूमाने व بدون آب و غذا کشته میشوند و شهید میشوند به دست اشق الاشقیا که یهودیان هستند. महकमा सकाफत के हुक्काम ने तमाम मेहमानों को सकाफत सिंध टोपी और अजरक का खूबसूरत तोहफा पेश किया। ईरान के मशहूर व मारूफ सनाख्वान ने अस्माउल हुस्ना को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। ईरान ने मेहमानों ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शान में मनकबत भी पेश की। ईरान से तशरीफ लाए हाफिज कुरान ने कुरान को मुख्तलिफ ज़बानों की तर्ज पर सुनाया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। पाकिस्तानी कारी हजरात ने भी खूबसूरत अंदाज में कुरान की किरत पेश की। किरत कॉन्फ्रेंस में दीगर मुकर्रिरीन ने कुरान की फजीलत पर रोशनी डाली और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर हुकूमत सिंध का शुक्र हाफिल का होना कुरान से रिश्ता मजीद मजबूत करेगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। माह सयाम इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत का पैगाम। हिंदू बिरादरी भी मोहब्बतें बांटने में पेश कराची कैंट स्टेशन पर महेश्वरी प्रीमियर लीग की जानिब से 2 रोज़ा अफ्तार का एहतमाम। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। कराची कैंट स्टेशन पर महेश्वरी प्रीमियर लीग की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया। महेश्वरी प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर सागर का कहना था, इफ्तार दस्तरख्वान का मकसद हिंदू और मुसलमान भाईचारे को फरोग देना है। हम अपने घरों से दूर रहते हैं, यहाँ काम काज के सिलसिले में, तो रमज़ान शरीफ में इस तरह दस्तरख्वान बिछाए जाते हैं तो इफ्तारी कराई जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और लोगों को भी यही कहते हैं कि इफ्तारी करवाएं हर जगह पे। अच्छा लगता है माशाल्लाह से, सारे लोग बैठ के एक साथ इफ्तार कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग आते हैं दूर से। हमारी रात को 12 बजे तक ड्यूटी होती है, 4 से 12, तो ज़ाहिर है हम घर जा नहीं सकते, तो हम फिर यहाँ पे ना अफ्तार अपना। हिंदू बिरादरी की जानिब से सजाए गए दस्तरख्वान पर इफ्तार करने वाले कुलियों और स्टाफ का कहना था कि दस्तरख्वान सजने से अपनायत का एहसास होता है। रवां साल रमजान में 2 रोज़ा इफ्तार दस्तरख्वान पर बैक वक्त 500 से ज़ायद अफराद के लिए एहतमाम किया गया। कैमरामैन शहरियार अली के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। साउथ जोन और किमाड़ी में भत्ता माफिया फिर सरगर्म। सईदाबाद थाने की हदूद में भत्ते की पर्ची मौसूल, 5 लाख नहीं दिए तो कत्ल हो जाओगे। भत्ते की पर्ची देने वाला किस हुलिये में था, सिटी 21 को दूध की दुकान के मालिक ने सब बता दिया। 5 लाख दो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। साउथ जोन में भत्ताखोर मजीद सरगर्म हो गए। साउथ जोन के जिला सिटी के बाद जिला किमाड़ी भी भत्ताखोरों की लपेट में आ गया। सईदाबाद में दूध फरोश के मालिक को 5 लाख भत्ते की पर्ची आ गई। दुकान मालिक मोहम्मद साबिर ने बताया कि भत्ताखोर ने मुंह पर काला रुमाल लपेटा हुआ था। रात 2:45 बजे भत्ताखोर मोटरसाइकिल पर पैंट शर्ट के होलिये में आया, भत्ते की पर्ची के साथ गोली भी फेंकी और फरार हो गया। वो रात को 2:45 बजे का लड़का है, मोटरसाइकिल पे वो पर्ची यहाँ फेंक के चला गया। पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था 5 दिन में 5 लाख का बंदोबस्त कर लें तो 5 गोली खानी पड़ेगी। तो मैंने पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को भी मेहरबानी, मीडिया वाले भी आए हैं, तो मेहरबानी मुझे तोहफ़ दिया जाए। अल्लाह जाने कौन है कौन नहीं है, ये सरगर्म फिर हो रहे हैं बत्ताखोर।
भत्ता खोर ने 5 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। दुकान मालिक ने रेंजर्स और पुलिस को इतला दे दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कैमरामैन शकील के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। साबिक सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले मुझसे बड़े लीडर हैं। इस वक्त इंतशार फैलाने वालों से बचा जाए। इत्तेहाद के जरिए ही मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस हवाले से हमना निसार की रिपोर्ट। शाह फैसल टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहरियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरमैन गौहर अली खट्टक और वाइस चेयरमैन तारिक महमूद ने शाह फैसल 2 नंबर के सबा अख्तर पार्क में रखा। तकरीब में साबिक सदर आरिफ अलवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आरिफ अलवी का कहना था कि कुर्बानी देने वाले मुझसे बड़े लीडर हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए जुल्म सहा। मैं उन हीरो की तारीफ करना चाहता हूँ। हीरे इस एतबार से कि पार्टी के अंदर कौम के हीरे हैं, जिन्होंने मारे खाई, जिन्हें जुल्म सहा। गौहर अली खट्टक ने कहा कि इफ्तार में MQM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के नुमाइंदे मौजूद हैं। मसाइल के हल के लिए एक जगह बैठना जरूरी है। पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी के तमाम लोग मौजूद है। इसका एहतमाम इसलिए किया गया था कि हम आपस में बैठे, एक तो पाकिस्तान के लिए दुआ करें और दूसरी बात ये थी कि हम आपस में काफ़ी दिनों से बैठ नहीं रहे थे और मसले मसाइल चल रहे थे, तो आपस में एक जगह बिठाना मतलब था। इफ्तार डिनर में शहरियों ने अपनी फैमिली के साथ शिरकत की, जबकि चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने अगले साल इससे बेहतर इफ्तारी का एहतमाम करने का भी ऐलान किया। कैमरामैन इमरान एकी के साथ हमना निसार, सिटी 21। ACG की जानिब से प्रेस क्लब पर इफ्तार डिनर का एहतमाम। इफ्तार में साबिक सेनेटर निहाल हाशमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके सहाफ़त में कैमरामैन की काविशों को सराहा। नमरा रियासत की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ कैमरामैन जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब पर सालाना इफ्तार। ACG की इफ्तार में कराची के कैमरामैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तार में शिरकत करने वाले कैमरामैन ने माह रमजान में इफ्तार के एहतमाम को मोहब्बत बांटने का जरिया करार देते हुए कहा, ऐसी तकरीबात से साल में एक बार मिल बैठने का मौका मिलता है। लेकिन हमने कोशिश की थी कि अच्छी जेंट्री हो, अच्छे लोग हो और हम कैमरामैनों के मसाइल और कैमरामैनों के वसाइल वो दोनों उनके सामने रख सकें। इफ्तार तो एक बहाना है, बेसिकली ये है कि फील्ड में हम सब एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो आज ये तकरीब इस बात का बहाना बन गई कि हमने एक दूसरे को यहाँ पर बैठे हाल अहवाल किया। इसमें कैमरामैनों की बहुत ज़्यादा काविशें थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक कैमरामैन हमारे एक मुत्तहद होकर एक प्लेटफार्म के ऊपर आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट की तरफ से एक इफ्तार डिनर रखा गया। खुशाइन बात है तमाम कैमरामैनों को मुत्तहद कर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, और स्पेशल रमज़ान में बहुत शॉर्ट वक्त होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। इफ्तार में साबिक सेनेटर निहाल हाशमी ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ACG के सालाना इफ्तार में कैमरामैन ने अपने मसाइल पर बात करते हुए इनके हल के लिए जल्द इक़दाम करने की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।